Hello everybody, welcome back to Kashish Teachings, and today we are gonna do change of state. In the previous video we have learned the state of matter. We have covered that in the video. So today starting with the new topic, which is change of state. So now what is change of state? Let's see the definition. The process of change from one state to another state either by absorption or rejection of heat at a constant temperature is called change of state. Now what is change of state? Change of state means the process which means that changing one state to another state either by absorption or rejection of heat at a constant temperature. It is called change of state. We have learnt in the previous video that there are three states of matter, which is solid, liquid and gas. Okay, this solid, liquid, gas when changes from the another state, like solid changes into liquid and liquid changes into solid. Okay, so this process is called change of state. But one thing is important, that is absorption or rejection of heat. Okay, so solid, if we take it like ice and liquid as water, so when ice is gonna absorb the heat, so in which it is gonna turn into water, which is liquid, and when liquid is gonna reject the heat, so it is gonna change into solid, which is ice. So this process only is called change of state. Okay, coming to what the next, change of state into liquid or vice versa. Vice versa means इसका उल्टा होना. Okay, when a solid is heated, it changes into its liquid at a fixed temperature. Okay, if solid means ice and liquid means water, so when solid is gonna absorb the heat or it is gonna be heated, it is gonna change into water. Why? Because it is ice, and when ice is heated, so it is going to change into water. Okay, if we but at a fixed temperature, not at any temperature. Yeah, at this temperature it will do. No, but at a fixed temperature. Okay, so this process is called melting or fusion. From solid, when it is heated, changes into liquid, so this process is called melting or fusion. Melting and fusion both are same, so no need to be confused. Okay, so coming to the next, vice versa. Now what is vice versa? इसका उल्टा होना. So this process melting or fusion का उल्टा क्या होगा? आइए देखते हैं. This liquid freezes into solid at same fixed temperature. This process is called freezing. If we take this liquid, means water, and this solid, ice, if we are gonna take this water again, and if we reject the heat, so it is gonna be cool. And changing into solid. So this process is called freezing. Now liquid changing into solid, this process is at a fixed temperature, so this process is gonna said that it is freezing. Now coming toward the next, change of liquid into gas or vice versa. Now we have to change the liquid into gas. Okay, when a liquid is heated, it changes into its vapor or gas at a fixed temperature. If we take water as an example, so if you take the water, so it is, if you are gonna heat that water, okay, so what it will turn into, take a water, okay, take in a vessel, take a water, okay, put it into a gas, okay, the stove, put it into the gas. So okay, when you will heat it, put the plate on it. So after some time you are gonna see little droplets, right? And before that you are gonna see the stems. So stem is gas or vapor. Okay, so this liquid, when it is heated, is changed at a fixed temperature, it is gonna change into gas. Okay, so this process is called boiling or vaporization. When you take in a vessel, you take some water, right? In that water you are gonna place on the stove, okay, on the gas. So
what it is gonna happen after some time at the boiling point when you are gonna see, so some steams are coming. Okay, place the plate on above. So when you will just take out that plate, so you are gonna see little droplets, and before that you were seeing steam. So here what is telling, when the liquid is heated, it is gonna turn into gas, but at a fixed temperature, and this process is called boiling or vaporization. I hope you have understand this. Now coming to vice versa. Okay, the reverse happen when vapor is cooled. वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा. एंड उल्टा जो होता है, तो फिर यहाँ पे हीट हो रही है एब्जॉर्ब, हीट इज़ एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होगा, कूल होगा. ठीक है. द वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड एट सम फिक्स टेम्परेचर. जब आप उसको ठंडा करोगे वाटर को, तो जो वेपर होगा वो कंडेंस हो जाएगा, यानी कूल हो जाएगा एट अ सेम फिक्स टेम्परेचर पे ही वो कम हो जाएगा. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. आपने पानी लिया, आपने उसको जो है गैस पर चढ़ाया, गैस पे चढ़ाने के बाद उसमें से स्टीम निकली, तो वो तो हो गया हमारा बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन. अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें, तो आप गैस को ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, जो प्लेट पे ड्रॉपलेट्स थी, जो स्टीम थी, वो किस में चेंज हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स में, लिटिल ड्रॉपलेट्स. तो यानी वो लिक्विड में वापस आ गया, वाटर में वापस आ गया. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू. एंड इफ़ यू सी इन द डायग्राम, लिक्विड जब हीट एब्जॉर्ब करती है तो किस में होती है, गैस में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग. ओके, अगर गैस जो है हीट रिजेक्ट कर देती है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, change of solid into gas or vice versa. Now solid is gonna change into gas and it's vice versa. In some case like camphor and iodine. Camphor means जो आप देखते हैं मंदिर में वगैरह में जो camphor होता है, उसी को ही बोलते हैं. ओके, on heating a solid directly changes to its vapor or gaseous state. अब आपको क्या था कि solid जैसे आइस ले लिया, ठीक है, आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में स्टीम. तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आइस है उसको डायरेक्टली फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगा, आइस पहले, तो फिर आइस जो है गैस में कन्वर्ट होगा. बट नो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं इनटू गैस. ओके, और उसका एग्जांपल है कैम्फोर एंड आयोडीन. तो अगर हम कैम्फोर को अगर हीट करें, तो क्या होगा, वो सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज हो जाएगा वेपर या गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड व्हेन चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इफ वी सी इन द वाइस वर्सा व्हिच इज रिवर्स, in reverse process the gas on being cooled directly changes into solid. Now here the gas when it is cooled, so if you cool that gas, so it is gonna directly change into a solid. Okay, so here what it is doing, so here first in the first one, in solid into liquid, it is absorbing the heat and changing into vapor or gaseous state. But in the reverse, the gas being cooled, okay, so gas is being cooled and it directly changes into solid, and this process is called depositation. मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब जैसे सॉलिड इंटू गैस है, तो सॉलिड इंटू गैस में क्या होगा कि सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और इसका एग्जांपल है कैम्फोर एंड आयोडीन, बट एट अ फिक्स टेम्परेचर पे ही. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को, जैसे सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. अगर हम रिवर्स प्रोसेस में देखें, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या है, गैस जो होती है वो कूल हो जाती है. द गैस ऑन बीइंग कोल्ड हो जाती है, डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड. ठीक है, गैस वापस से सॉलिड में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिटेशन. अब आप डायग्राम देखो, तो जो सॉलिड है इसने हीट जो है एब्जॉर्ब करी, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ.
लेकिन गैस ने जो है हीट रिजेक्ट कर दी तो डिपोजिटेशन होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग जो है, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। मेल्टिंग जो होता है, क्या होता है, द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर। हमने क्या पढ़ा था, जो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है फिक्स टेम्परेचर पे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, दिस इज राइट। The temperature at which a solid changes into liquid without further increase in temperature is called melting point of solid. Now at the temperature at which solid changes into liquid, यानी वो टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है विदाउट फर्दर इंक्रीज, यानी ज़्यादा एक ही फिक्स टेम्परेचर पे रहना, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ओके, अगर टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, राइट, वो टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल लाइक आइस इज सॉलिड एंड मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर। जो आइस है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, ओके, फ्रॉम वाटर, ठीक है, जो लिक्विड बन जाता है फिर एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करने से इसने जो है उसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। आई होप आपको मेल्टिंग में समझ में आया होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। जो चेंज होता है सॉलिड को लिक्विड में, उसकी एट अ फिक्स टेम्परेचर हीट करने पे, अगर सॉलिड को हीट करते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर, वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग। ओके, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, ऊपर नीचे ज़्यादा जो हीट है वो ऊपर नीचे नहीं होती है एट अ फिक्स टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है और वाटर बन जाता है विच इज़ लिक्विड, और 0 डिग्री बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली इसने हीट। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट, अब हम इधर डिफ्रेंशिएट देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कमिंग टूवर्ड द सॉलिड का जो फर्स्ट पॉइंट है, अ सॉलिड हैज़, जस्ट अ सेकेंड, a solid has a definite shape and a definite volume. Okay, solid जो होता है definite shape और definite volume होती है, right। अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें, a liquid has a definite volume but no definite shape। इस definite shape क्यों नहीं होती, क्योंकि ये liquid है, flow करती है, जिस कंटेनर पे आएगा तो उसकी shape ले लेगी, right। Now if we see in the gas, a gas has neither a definite volume nor a definite shape, ठीक है। अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें सॉलिड का, दी मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर रिजिड। रिजिड होता है मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके। और इसमें देखें तो दी मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉन रिजिड, ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं। और अगर हम देखें इसमें तो मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर नॉन रिजिड, इसमें भी नॉन रिजिड होते हैं। वाई, बिकॉज दे कैन फ्लो, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ओके। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब देखो क्या होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टू एंड फ्रो का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को हेल्प करती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड में, तो वो अपने ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं और टू और फ्रो अपनी ही मीन पोजीशन पे, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जबकि अगर हम देखें थर्ड वाले में, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द वेसल। तो जो लिक्विड है वो अपनी जो लिक्विड होता है वो अपनी बाउंड्री जो होती है वेसल की, जिसमें वो पड़ा हुआ है, उसके ही आसपास घूम सकती है, ओके। इफ़ यू सी इन द गैस, द मॉलिक्यूल्स इन गैस कैन मूव फ्रीली इन अवेलेबल स्पेस। जो भी इसको अवेलेबल स्पेस है वो हर जगह जा सकता है, ओके। कमिंग टूवर्ड द फोर्थ पॉइंट ऑफ सॉलिड,
द मॉलिक्यूल्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो अपने ही फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की, ये मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिमेन एट अ फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं तो इस वजह से वो अपनी ही जगह पे नहीं रह सकते। द मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन एट फिक्स्ड पोजीशन, दोनों फ्लो करते हैं लिक्विड एंड गैस। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है, मॉडरेट होता है, यानी ठीक ठाक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, तो क्योंकि गैस में इधर से उधर जा रहे हैं तो फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है और बहुत वीक होता है। कमिंग टूवर्ड द लास्ट सेकेंड पॉइंट विच इज सिक्स्थ, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। आई टेल यू दैट जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर बात करें हम सिक्स्थ की, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड लूजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड से जो है लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल इन गैस आर वाइड अपार्ट, यानी क्लोजली पैक्ड होते ही नहीं हैं। ओके, सो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट, अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, और जो लिक्विड है ये फ्लो कर सकता है। लिक्विड कैन फ्लो और अ गैस कैन फ्लो। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा, और चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने के बाद हमने मेल्टिंग के बारे में भी पढ़ा ब्रीफली, और हमने सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएट देखा। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें। लिंक जो है मैं आपको देती हूँ, लिंक नोट्स की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ, अभी जाके नीचे चेक कीजिए। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।